آج کا ہمارا ٹاپک ہے 10 بگیسٹ رائیولریز ان اینیمل کنگڈم۔ اینیمل کنگڈم میں ہم اکثر جانوروں کا ایک دوسرے پر غلبہ دیکھتے ہیں۔ پریڈیٹرز کا اپنی پرے پر اور اپنی ٹیریٹری کو بچانے کے لیے ایک جانور کا دوسرے جانور پر۔ بعض اوقات یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا بلکہ کافی زیادہ ٹف ہوتا ہے۔ اکثر جگہوں پر کچھ پریڈیٹرز آپس میں شکار کی خاطر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، جس وجہ سے ان کے درمیان بہت پرانی دشمنی چلتی رہتی ہے۔ سو لیٹس سی کہ کون سے جانوروں کے درمیان زیادہ دشمنی ہوتی ہے۔ آنٹس ورسز ٹرمائٹ۔ ٹرمائٹس کے سائز کی وجہ سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آسانی سے چیونٹیوں کو ہرا سکتی ہے، کیونکہ ٹرمائٹس سائز میں آنٹس سے 2 to 3 ٹائمز بڑی ہوتی ہیں اور کبھی کبھار اس سے زیادہ بھی۔ ٹرمائٹس کا سر بہت بڑا ہوتا ہے اور ایک بڑی ڈھال کی طرح کام کرتا ہے، مگر یہ آنٹس ورسز ٹرمائٹس کی لڑائی میں اتنا بھی کارآمد ثابت نہیں ہوتا۔ اگر آنٹس کی لڑائی ٹرمائٹ سے ہو تو یہ اس کے زیادہ قریب نہیں جاتے، یعنی اس کی ٹانگیں اور باقی ویک پارٹس کو نشانہ بناتے ہیں، مگر پھر بھی آنٹس کو ٹرمائٹس پر وکٹری حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ آنٹس زیادہ انرجیٹک، زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں اور نومیریکل سپیریئر ہوتے ہیں۔ آنٹس اکثر ٹرمائٹس کی کالونیز پر اٹیک کر دیتے ہیں اور ٹرمائٹس کے واریئرز کے ساتھ لڑنے کے بعد ان کی کوئین کو ان کے نیسٹ سے باہر نکال پھینکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹرمائٹس کی کالونی ڈیتھ کر چکی ہے۔ آن نمبر 2 از گریٹ وائٹ شارک ورسز کلر ویل۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گریٹ وائٹ شارک سمندر پر راج کرتی ہے اور آسانی سے دوسرے سمندری جانوروں کو ڈیفیٹ کر سکتی ہے، تو پھر کون سا ایسا سمندری جانور ہے جو بغیر خوف زدہ ہوئے اس کا سامنا کر سکتا ہے؟ بہرحال سمندر ہمیشہ سے سرپرائزنگ ہی رہا ہے اور یہ جائنٹ ٹیریبل کریچر سے فل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر گریٹ وائٹ شارک اور اورکاز ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو کیا ہوگا؟ اورکاز کا وزن 5600 kg یعنی 12,300 پاؤنڈز ہوتا ہے اور اس کی لمبائی 31 فیٹ ہوتی ہے، 9.5 میٹر، جبکہ گریٹ وائٹ شارک کا وزن 1000 kg ہوتا ہے یعنی 2200 پاؤنڈز ہوتا ہے اور اس کی لمبائی 16 فیٹس ہوتی ہے۔ اورکاز اپنے بڑے سائز کی وجہ سے ہمیشہ ایسے شکار کا پیچھا کرتی ہے جن کا جسم کافی بڑا ہوتا ہے، یعنی جس شکار سے ان کو کافی سارا پروٹین مل سکے۔ گریٹ وائٹ شارک کو ان سے بچنا پڑتا ہے کیونکہ اورکاز گریٹ وائٹ شارک کو ایک لمبے عرصے سے شکار کرتی آ رہی ہیں۔ گریٹ وائٹ شارک کلر ویل کی ڈائٹ کا حصہ ہیں۔ اگر شارک کو پتہ چل جائے کہ کلر ویل اسی ایریا میں ہے جہاں شارک تیر رہی ہے تو یہ اس ایریا کو چھوڑنے میں اپنی عافیت سمجھتی ہیں۔ آن نمبر 3 از لائن ورسز ہائینا۔ شیر اور لگڑ بھگا ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہیں، جیسا کہ لائن کنگ مووی میں دکھایا گیا ہے۔ ان کیس یو واچ دیٹ آلریڈی، تو پھر آپ اس دشمنی کو جانتے ہوں گے کہ ہائینا مفاسا سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں، مگر پھر بھی سمبا کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لائن ہائینا سے بڑا ہوتا ہے اور یہ برابری کا کنٹیسٹ نہیں ہوتا، مگر اصل میں اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ شیر اور ہائینا دو مختلف سپیسیز ہیں جو ایک ہی ہیبیٹاٹ میں رہتے ہیں۔ کنفلکٹ ہونے پر ہائینا کو زیادہ تر اپنے کلین کے بیک اپ کی وجہ سے ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے۔ ہائینا کی طاقت اس کا سٹیمنا اور جا پریشر جو کہ 1000 PSI سے زیادہ ہوتا ہے، اور یہ انتہائی ذہین ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لائن کے اگینسٹ جم کر کھڑے رہتے ہیں اور یہ اکثر لائن سے شکار چھین بھی لیتے ہیں۔ شیر اپنے بڑے سائز کی وجہ سے ہائینا کو آسانی سے پش کر سکتا ہے، مگر ہائینا کو بھی بڑے کلین کی وجہ سے طاقت ملتی ہے۔ Please press like button and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for getting updates of every new upcoming video. On number 4 bear versus wolf. بیئر سائز میں ولف سے کافی بڑے ہوتے ہیں۔ گریزلی بیئر کا سائز 5 to 8 فیٹ تک ہوتا ہے اور وزن 800 پاؤنڈ ہوتا ہے، جبکہ ولف کا سائز 36 to 63 انچز ہوتا ہے۔
होता है और इसका वजन 175 पाउंड होता है। इन केस अगर वुल्फ सीधा सीधा बियर के साथ जाकर टक्कर लेता है तो इसके बचने के चांस बिल्कुल नहीं होते। लेकिन वुल्फ को एक बड़ा एडवांटेज होता है कि ये ग्रुप में वर्क करते हैं, इस वजह से अक्सर औकात बियर के साथ कन्फ्लिक्ट होने पर वुल्फ इसे अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन अगर बियर ज़्यादा बड़े साइज यानी फुल साइज का हो तो फिर मजबूरन वुल्फ को इसे छोड़कर जाना ही पड़ता है। वुल्फ एक बड़े पैक की सूरत में रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले होते हैं और बियर काफ़ी बड़े ताकतवर होते हैं। वुल्फ बियर को सिर्फ इस वक्त मार सकते हैं जबकि वो फुल एडल्ट नहीं होते। कम उम्र बियर को वुल्फ आसानी से मार लेते हैं। जब बियर कब होता है, इस सिचुएशन में फेरोशियस गार्ड मदर बियर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अकेला वुल्फ बियर के हाथ लग जाए तो उसको छुड़ाना और बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑन नंबर 5, जायंट स्क्विड वर्सेस स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल का साइज 49 to 59 फीट्स होता है और ये 3280 फीट्स की गहराई में डाइव कर सकती हैं और यहाँ पर इसका सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन जायंट स्क्विड से होता है। जायंट स्क्विड एक डीप सी क्रीचर है जो कि एक मिथोलॉजिकल क्रीचर क्रैकन से मिलती जुलती है। अब तक की सबसे बड़ी फाउंड हुई जायंट स्क्विड का साइज 59 फीट्स था। ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस फाइट में किसको बर्तरी हासिल होगी, क्योंकि जायंट स्क्विड बहुत गहरे पानियों में रहता है और इसलिए इस तरह की फाइट अब तक रिकॉर्ड नहीं की जा सकी। जायंट स्क्विड का सामना इंसानों से बहुत रेयर होता है और ये समझा जाता है कि 3/4 स्पर्म व्हेल की डाइट जायंट स्क्विड होती है। यहाँ तक कि जायंट स्क्विड के वेपन्स जैसे कि इसकी हुक और बीक स्पर्म व्हेल पर स्कार्स बना देती हैं और कई जायंट स्क्विड की बीक स्पर्म व्हेल के मैदे से फाउंड हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि जायंट स्क्विड अक्सर जीत जाती है और बाज़ औक़ात स्पर्म व्हेल की खुराक बन जाती है। इसके बाद नंबर आता है हनीबीज वर्सेस जायंट एशियन हॉर्नेट। जायंट एशियन हॉर्नेट 2 इंचेस से बड़े होते हैं और ये 15 माइल्स पर आवर यानी 24 किलोमीटर पर आवर तक उड़ सकते हैं। ये खाने में हनीबीज और उनके लार्वास को खाना पसंद करते हैं। ये हनीबीज हाइव में इन्वेड कर जाते हैं यानी घुस जाते हैं बिल्कुल बेखौफी से और इनके लार्वे खाते हैं। अगर बीज इनके साथ फाइट बैक करती हैं तो एक जायंट एशियन हॉर्नेट हंड्रेड्स ऑफ बीज पर भारी पड़ता है, क्योंकि बीज का स्टिंक इन हॉर्नेट्स के आर्मर से पास थ्रू नहीं होता। एक हॉर्नेट 1 मिनट के अंदर 20 बीज को आसानी से मार देता है। पहले तो बीज इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर इस फाइट से बीज ने एक चीज अडॉप्ट की है कि वो हॉर्नेट को रोकती नहीं है। जब हॉर्नेट इनके हाइव्स में दाखिल हो जाता है तो ये इसके गिर्द जमा हो जाती हैं और इतनी गर्मी पैदा करती हैं कि हॉर्नेट झुलस जाता है। ये अपनी वाइब्रेशन से ऐसा करती हैं। ये नेचर में एक स्पेक्टेकुलर डिफेंस मैकेनिज्म है। जायंट एशियन हॉर्नेट एक टेरेबल इंसेक्ट है, मगर हनी बीज भी बहुत ज़्यादा बहादुरी से इसका मुकाबला करती हैं। ऑन नंबर 7 इज मोंगूज वर्सेस कोबरा। थ्रू आउट द हिस्ट्री मोंगूज एंड कोबरा को एक दूसरे से लड़ने की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, यानी दीज आर द मोस्ट फेमस राइवल्स इन द वर्ल्ड। एंशिएंट इजिप्शियन और इंडियन सिविलाइजेशन में कोबरा को अपने जहर से दूसरों को खौफजदा करने और मोंगूस को इसके जहर के खिलाफ अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। कोबरा मोंगूस को शिकार नहीं करते, मगर मोंगूस अक्सर कोबरा का और दूसरे जहरीले सांपों का शिकार कर लेता है। कोबरा का जहर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और लीथल होता है, पर ये एक भूखे नेवले को अपना शिकार करने से नहीं रोक सकता। इसकी वजह यह है कि नेवले की इकसाम में बहुत ज़्यादा फुर्ती और इसकी जिल्द पर फर की वजह से इस पर स्नेक बाइट नहीं होती, और अगर कभी हो भी जाए तो इसकी जहर का असर इन पर बहुत कम होता है और इनका इम्यून सिस्टम कोबरा के और दूसरे जहरीले सांपों के जहर से इसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर देता है।
बहरहाल इन दोनों की फाइट में नेवले को ही सांप पर बर्तरी दी जाती है। ऑन नंबर 8, पाइथन वर्सेस एलिगेटर। मेल अमेरिकन एलिगेटर का साइज 11.2 फीट होता है और वजन 1000 पाउंड यानी 450 केजीज होता है। इसकी बैक स्किन आर्मर्ड होती है विद बोनी स्किन। बर्मीज पाइथन कैन रीच 16 to 23 फीट और इनका वजन 200 पाउंड यानी 90 केजी होता है। ये अपने शिकार को जकड़कर इसके गिर्द घेरा तंग करता है और फोर्स लगाकर सफोकेशन की वजह से मार देता है। ये बहुत ज़बरदस्त स्विमर्स होते हैं और पानी के अंदर 30 मिनट्स तक बगैर सांस लिए रह सकते हैं। बर्मीज पाइथन और अमेरिकन एलिगेटर एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन में नहीं आते। अगर ऐसा होता है तो इनमें जीतने वाला दूसरे को खा जाता है। इन दोनों के खाने में कदरे मुख्तलिफ अंसर नुमाया है कि एलिगेटर पीस टू पीस खाता है और जबकि पाइथन अपने से 3 से 4 गुना बड़े शिकार को पूरे का पूरा ही निगल लेता है। ऑन नंबर 9, एलिफेंट वर्सेस राइनो। एलिफेंट का साइज 8.2 से 13 फीट होता है। अफ्रीकन एलिफेंट और द बिगेस्ट लैंड एनिमल ऑन द प्लैनेट। इनका वजन 14,000 पाउंड यानी 6,350 केजी होता है। राइनो इससे कदरे छोटा होता है मगर फिर भी बड़े साइज का होता है। इसकी हाइट 4.5 से 6 फीट तक होती है और इसका वजन 1400 केजी 3000 पाउंड होता है। दोनों जानवर फेरोशियसली अटैक करते हैं विद ह्यूज स्टेमिना और दोनों इक्वली इंटेलिजेंट होते हैं और आपस में लड़ाई नहीं करते। हाथी एक अमन पसंद जानवर है और अपने माहौल में मस्त रहता है। अगर इसका सामना राइनो के साथ हो जाए तो ये इस पर अटैक भी कर देता है। एलिफेंट राइनो को आसानी से गिरा सकता है और इस पर वजन डालकर इसको क्रश भी कर सकता है। फरवरी 2000 में यंग ऑर्फन ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स वाज रिपोर्टेड टू हैव किल्ड 36 राइनोज। इस वजह से एलिफेंट्स ने बिहेवियर एग्रेसिव डेवलप कर लिया है और ये हुआ था सिर्फ एडल्ट एलिफेंट के पास न होने की वजह से। ऑन नंबर 10, पोलर बियर वर्सेस वॉलरस। पोलर बियर जायंट बीस्ट के तौर पर माना जाता है आर्कटिक में। एक एडल्ट पोलर बियर 8 फीट का होता है। इसका वजन 1600 पाउंड 720 केजी होता है। वॉलरसेस पोलर बियर के लिए एक बहुत खतरनाक प्रे माने जाते हैं। ये 7.25 से 11.5 फीट तक होते हैं और इनका वजन 1.5 टन होता है। ये पोलर बियर से 2 गुना ज़्यादा हैवी होते हैं। इसके टस्क 3 फीट तक लंबे होते हैं जो कि एक पावरफुल वेपन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अगर पोलर बियर वॉलरस पर अटैक करे तो कुछ भी होने का खतरा होता है। पोलर बियर एक ताकतवर नेचुरल प्रेडेटर है। पोलर बियर के बाकियात को अक्सर फाउंड किया गया है जो कि वॉलरस के हाथों मारे गए हैं। पोलर बियर के पास इनके खिलाफ लैंड पर एडवांटेज होता है। अक्सर देखने को मिलता है जब पोलर बियर वॉलरस को अटैक करता है तो ये पानी के अंदर जाने लगते हैं और पानी में जाने से वॉलरस के पास एडवांटेज होता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।